Very good morning to everyone and welcome to the Uthan session today. So today we're in the second session of the new topic that we started, which was meditation. And for this we have Sangeeta Didi joined us. Didi, welcome to Uthan. Om Shanti and over to you. Om Shanti. Good morning, all of you, and welcome to a very important uh, program, and a very good thing that you all have shown the interest in the spirituality, in meditation. How many of you are really interested in meditation? Yeah, all of you? Yeah. And maybe some of you must be even doing meditation. हम करते हैं, रोज मेडिटेशन करते हैं, ऐसे भी है कोई? अच्छा. So now meditation has become more as a fashion one. It's like, yeah, I regularly do the meditation. लेकिन, and then we have picturized meditation as closing the eyes and remembering someone's divine, so-called supreme. इसी को हम कहते हैं I always do meditation. ना, इसी को बोलते हैं ना. तो now, actually speaking, let's understand what exactly is meditation. Before that, all the angels, those who wish to listen, to do the meditation, so the angels have to show themselves first. All the angels, yes, सभी को योग करना है. हाँ, जो मेडिटेटिव स्टेज वाले हैं सभी बाहर आ जाए, क्योंकि अभी सभी मेडिटेटिव स्टेज में है. वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. ओके. So therefore, when we say meditation, और we feel कि चुपचाप बैठ जाना, आंखें बंद करना और ऊपर किसी को ध्यान लगाना. अब ये सब तीनों हम प्रोसीजर कर भी लेते हैं, एंड फिर बहुत अच्छा, इवन एक रूम भी चूज कर लिया, एक जगह भी चूज कर ली, एक पोज भी चूज कर लिया, एंड देन यू आर, फिर हम पूरा टाइमिंग्स भी चूज कर लेते हैं, एंड वी माइट मेक आवर सेल्फ इवन फ्री ड्यूरिंग दैट टाइम, स्विच ऑफ भी कर दिया. ये सब अपने आप को सब तरफ से स्विच ऑफ, कभी कभी हम कमरा भी बंद कर देते हैं. अब इतनी सब लॉजिस्टिक्स होने के बाद, आर वी एबल टू मेडिटेट? सामने फोटो भी रख दिया, स्टिल आर वी एबल टू मेडिटेट? नहीं. व्हाट्स द रीजन? इतना सब कुछ करके भी फिर भी, क्योंकि इट्स लाइक, जिसका, जैसे आप किसी व्यक्ति को, एक पेशेंट है, उसको आप डॉक्टर के पास, क्योंकि उसको ठीक करना है, आप उसके पास उसको लेके जा रहे हो डॉक्टर के पास. अब वो डॉक्टर अभी तक आया नहीं है. पेशेंट कहता है कि ऐसे करो, आप इधर बैठो, मैं जाके आता, मैं चला जाता. तो अब वो गया, डॉक्टर आया. अब जिसको ट्रीट करना है वो तो था ही नहीं, तो ट्रीट किसको करे? ठीक इसी तरह, सो व्हेन वी डू मेडिटेशन, व्हाट एक्चुअली वी आर डूइंग? वी आर डूइंग एवरीथिंग. सो यू हैव कम टू द डॉक्टर, यू आर देयर, you are very cordial, you are very, but you have come for what? For that patient. If the patient is not there, then what's the use of the doctor? So I do all the logistics and I want to connect to the supreme. तो जिसको कनेक्ट करना है, जो मन उसको कनेक्ट करने वाला है, वो मन तो उसमें होता नहीं है. मन कहाँ होता है? कहाँ कहाँ घूमता है मन? वो घूम रहा है, ऑफिस में जा रहा है, बच्चों के पास जा रहा है, एंड यू
एंड यू आर देयर विद द सुप्रीम। शरीर है, मन नहीं है। किसकी ट्रीटमेंट करनी थी? जिसकी ट्रीटमेंट करनी है वो तो था ही नहीं वहां। इसलिए इवन आफ्टर whilst डूइंग मेडिटेशन व्हाट वी से, बहुत अच्छा लगा, आई फील वेरी मच एट पीस व्हेन आई डू मेडिटेशन, वंडरफुल। अब उसके बाद if I say that when I'm before the doctor, I feel very healthy. And when you are away from the doctor, I don't feel healthy. Why did I go to the doctor? So that I take such treatment so that I can become healthy. This is the reason. If I go to the doctor whilst I'm before that doctor, तब तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो उसका फिर दवाई का फायदा क्या हुआ कि बाद में तो मेरे को अच्छा ही नहीं लगा। Similarly, how many of us have do this feeling कि when I'm in meditation, I've done all this logistics, I feel very much at peace, है ये? उस समय बहुत अच्छा लगता है, और बाद में when I'm in the office, then I'm at peace. When I'm with the children, when I'm in a chaos, तो उस समय am I at peace? तो इसका मतलब हमने हमने जो किया वो उस समय के लिए किया था। I should have been so much so that medicine which I take should be so much so that even while I'm away from the doctor, I feel very healthy. Then is called the impact of the treatment. मेडिटेशन के समय पीस अच्छा लगा, और उसके बाद ट्रैफिक जैम में फंस गए, ऑफिस में आ गए, पीपल आर अब्यूजिंग यू, ब्लेमिंग यू, उस समय पीस। दिस इज कॉल्ड, therefore when I am at peace whilst I am everywhere, this is called meditation. तो ये इसको कहेंगे, मतलब आपने उस समय रियली ऐसी ट्रीटमेंट करी जो बाद में वो मन उस पूरे वो माइंड, द ट्रीटेड माइंड was going to the office, the treated mind was dealing in the office, इंजर्ड माइंड नहीं है। तो therefore this is called meditation, where I take that energy so much so कि वो सारा समय यूज होता है। So this we will understand as meditation. तो अब जब मेडिटेशन के करते हैं तो लॉजिस्टिक्स तो हमने सब कर ली। अब मेन, क्योंकि जिसको कनेक्ट करना है वो वो कनेक्ट, इट्स लाइक आपने फोन तो लगा दिया, बैटरी निकाल दी, अब 2 घंटे भी वो चार्जिंग में रखो, चार्ज हो जाएगा? चार्ज नहीं हो रहा है। क्यों? फोन तो लगाया हुआ है। तो जिसको चार्ज करना था वो तो है ही नहीं वहां। सो अभी मुझे उसको चार्ज करना है। किसको चार्ज करना है मुझे? सो मेडिटेशन इज नथिंग बट चार्जिंग। तो चार्ज जिसको करना है, किसको चार्ज करना है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। शरीर को चार्ज करना है, बॉडी को, आईज को चार्ज करना है, ब्रेन को चार्ज करना है, माइंड को चार्ज करना। प्लीज राइट द आंसर्स। बॉडी को चार्ज करना है, आईज को चार्ज करना है, ब्रेन को करना है, हार्ट को करना है, माइंड को करना है। वंडरफुल, अनएनिमस आंसर। सो इट मीन्स जिसको चार्ज करना है वो उस समय था वहां, जब ये सब लॉजिस्टिक्स किया।
आप कहेंगे ऑब्वियसली नहीं था। तो वो नहीं था, इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि जो जिसको करना है वो नहीं है। द रीजन वाई इट इज रनिंग अवे, उसको वहां मजा नहीं आ रहा है, एंड देयरफॉर इट इज रनिंग अवे। फिर हम कहते देन वी हैव अ सपोर्टिव स्टेटमेंट्स, मन बड़ा चंचल है, मन घोड़े की तरह है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इफ दिस इज द जनरल स्टेटमेंट, मन घोड़े की तरह है, तो फिर हमको मेडिटेशन करने की जरूरत ही नहीं है ना। बिकॉज मन तो घोड़े की तरह है, मन तो बहुत चंचल है, मन तो लगेगा ही नहीं। तो इसका मतलब देर इज माइंड कैन बी concentrated. Mind can be made powerful. it it has the power to be concentrated. We just have to have the method. So now, how many of us do the work very concentratingly? करते हैं हम, जब काम करते बहुत हमको कभी कभी पता नहीं चलता। या चलो फॉरगेट, मुझे फिल्म देखना है, कुछ देखना है, बहुत एकाग्रता से हम 3 घंटे बैठते हैं। ऐसा है, एक्सपीरियंस है सबको। You can sit in film for 3 hours without even knowing anything going around. You can talk to people for 2 to 3 hours without getting disturbed. मन पूरा कॉन्सेंट्रेटेड है, ऑफिस का काम हम कर सकते हैं। सो इट मीन्स माइंड को कॉन्सेंट्रेशन करने की आदत है। अगर नहीं आदत होती तो वो कैसे करता? तो कॉन्सेंट्रेशन करने की भी आदत है, माइंड को लगाने की इच्छा भी है। फिर उस समय माइंड कहाँ चला जाता है? ऐसा तो नहीं कि हमको नहीं आदत है। तो आदत है तो वहां क्यों नहीं कॉन्सेंट्रेट हो जाता? इफ आई नेवर हैव द हैबिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, वी हैव अचीव डिग्रीज स्टडीज में। हाउ डिड वी स्टडी? वी स्टडीड, वी डिड सो मेनी वर्क्स विथ कॉन्सेंट्रेशन, वी अचीव्ड सो मेनी थिंग्स। व्हेन वी आर ड्राइविंग क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन होता है या नहीं होता? होता है। तो everywhere we are using concentration, otherwise we would have not been able to work in office also. तो मतलब I have the mind, my mind is able to concentrate, and my mind is want, it has the desire also कि मुझे मेडिटेशन करना है, थोड़ा शांति मिलेगी। इच्छा भी है, करना भी आता है, पूरा लॉजिस्टिक्स भी करते हैं, फिर क्यों नहीं कॉन्सेंट्रेशन हो जाता? फिर क्या प्रॉब्लम है मेडिटेशन? देन व्हाई डू आई हैव दिस कंप्लेंट? मन बहुत भटकता है, पता नहीं, मेरा बहुत विवरिंग माइंड है। व्हाट कुड बी द रीजन? एम आई ओके? एम आई राइट? जब ये सब चीज है तो फिर क्यों नहीं कॉन्सेंट्रेशन होता? ये भी तो नहीं ना कि कॉन्सेंट्रेशन करना नहीं आता है, आता है। मतलब समवेयर गड़बड़ है, जिस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं या इन दोनों के बीच में। इसलिए वहां मन नहीं लगता है, सब जगह मन लग जाता है, और फिर जहां लगना नहीं चाहिए वहां भी लग जाता है। ऐसी बातों को याद नहीं करना चाहिए। हम एक एक घंटा उस बात को याद करके, उस व्यक्ति को याद करके डिस्टर्ब होते हैं, वहां भी लग जाता है। पर जहां लगना चाहिए वहां नहीं लग रहा है। कारण क्या? रिलेटिव्स में लग जाता है, बच्चों में लग जाता है। व्हेन इट, बिकॉज गॉड गॉड इज एन एंटिटी, तो उसमें क्यों नहीं लगता है, बाकी सब में लग जाता है। सो वी हैव टू हैव अ नाउ दिस क्वेश्चन, लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन। सब जगह लग सकता, वहां क्यों नहीं लग सकता? लगने का कारण, कहीं भी हम कहाँ भटकते हैं? सपोज आपको, यू वांट टू रीच समवेयर, आपके तो पता नहीं मैं कितनी गली गई, आई जस्ट कुडंट फाइंड योर एड्रेस। वेयर डू आई वॉन्डर? वेयर आई डोंट हैव द क्लियर एड्रेस।
वहां फिर हम भटकते हैं। तो मन भटकता है, मतलब कहीं ना कहीं हमें एड्रेस क्लियर नहीं है। कहीं ना कहीं जिसके साथ हमें मिलना है, तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल द एड्रेस इज नॉट क्लियर, इसलिए भटकता है। दूसरा, जैसे उस संबंध, कोई व्यक्ति के साथ मुझे कनेक्ट होना है, तो जो जिसके साथ कनेक्ट होना है, I should feel when it comes to a human being, any energy, is it possible that when we are with somebody, हम कहते हैं I feel very connected with this person, और किसी से हम कहते हैं I just feel disconnected. Do we ever utter these words? मतलब किसी के साथ मैं बड़ा बहुत कनेक्टेड फील करती हूँ, किसी के साथ बहुत डिस्कनेक्टेड फील करती हूँ। तो मतलब कनेक्शन और डिस्कनेक्शन, इज इट कनेक्टेड टू डिस्टेंस when it comes with an energy, or is it connected, it does it relate to something else? I feel very connected with this person. मतलब कनेक्शन, इट्स नॉट कि वो व्यक्ति सामने हो इसलिए कनेक्टेड है, वो व्यक्ति दूर है तो डिस्कनेक्टेड है। कनेक्शन मीन्स हाउ क्लोज, how your feelings are being understood or matched with that person. That is called connection. Right? इसी को हम करते हैं। तो इसलिए now meditation is a connection. मतलब कभी कभी सामने है, डिस्कनेक्टेड है, तो इसका मतलब सामने है, फोटो मेरे पास है, हम कहते हैं डिस्कनेक्टेड है, कनेक्शन ही नहीं हो रहा है। मतलब फीलिंग्स की मैचिंग नहीं हो रही है। अब फीलिंग्स की मैचिंग कैसे होगी? अब जो फोटो है वो जड़ है या चैतन्य है? अब वो फोटो तो जड़ है सामने, और हम कहते हैं मेरा, अब जब सामने जड़ की फीलिंग है तो मेरा कनेक्शन होगा। तो समवेयर जिसके साथ हम मिल रहे हैं, जिसको मिलना चाहते हैं, कुछ उसके साथ की एनर्जी की प्रॉब्लम है। देयरफॉर वी से कि पता नहीं मेरा मन बहुत भटकता है, मतलब कहीं मुझे वो कनेक्टेड फील नहीं होता है। तो अब किसी के साथ भी क्लोज, तो जब हम किसी के साथ बहुत क्लोज होते हैं ना, वेर आई कैन शेयर माई सेल्फ, आई फील वेरी कनेक्टेड। वेर आई कांट, आई फील वेरी सफोकेटेड। तो मेडिटेशन का मतलब क्या है? टू बी वेरी ओपन, वेर आई कैन शेयर माई फीलिंग्स, आई कैन बी माई सेल्फ, देर इज नो प्रिटेंशन। तो मतलब जिसके साथ मैं हूं, if I have that closeness, I will feel very connected. अब क्लोजनेस के लिए किसी से भी बहुत क्लोज संबंध जब करना होता है, हम क्या करते हैं? जितने भी संबंध है, या सपोज एक लड़की के लिए एक एक कंपैटिबिलिटी देखनी हो, एक पार्टनर चूज करना है, तो हम क्या देखते हैं उस पार्टनर के लिए कि ये वर्च्यूज उसमें होने चाहिए। It has to be to compatibility, and that no, we first understand everything, the whereabouts, कहाँ है, क्या है, कैसा है, खानदान देखते हैं ना। फर्स्ट ऑफ ऑल, द वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट वी डू इज वी प्रोफाइल मंगाते हैं, भाई क्या प्रोफाइल है। प्रोफाइल के बाद वी टेंड टू अंडरस्टैंड द होल, लाइक फैमिली ऑल्सो, कैसी फैमिली है, क्या है, एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा तो पता होना चाहिए। अगर ये भी सपोज बहुत अच्छी कंपेटिबिलिटी है लेकिन बहुत वर्स्ट फैमिली है, तो भी बहुत अपोजिशन होता है।
चाहे वो शादी कर भी ले, बाद में दे सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं करती है, बहुत डिफरेंस है। तो कोई भी कनेक्शन के लिए, क्लोजनेस के लिए, फर्स्ट द वेरी फर्स्ट थिंग इज इंट्रोडक्शन। जब तक इंट्रोडक्शन क्लियर नहीं है, तब तक फुल, वंस दैट इंट्रोडक्शन इज क्लियर, कौन है, क्या है, कहाँ रहता है, किस फैमिली का है, फिर वो क्लोजनेस बाद में डेवलप हो। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन। नाउ therefore now connection with the supreme, meditation is the soul connects with the supreme। अब इसमें हमको फर्स्ट इज मेरा इंट्रोडक्शन हो गया, विच वी डिड लास्ट टाइम। हु एम आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट, what all we did, you all must have even done that experience also, homework। अपने आप को हम शरीर से अलग, ये तो हम मानने लग गए। आई एम अ प्योर एनर्जी, वेरी प्योर, हु हैज ऑल द 7 virtues, शांति, प्रेम, द 7 virtues, वो मैं आत्मा हूं। अब जब मैं वो आत्मा हूं, आई नो माई सेल्फ, तो जिसके साथ मुझे कनेक्शन करना है उसके बारे में भी तो क्लैरिटी चाहिए। जब उसकी बात आती है तो हमारे में क्या फीलिंग्स आती है? whenever it comes to the supreme, बहुत बड़े, पर्टिकुलरली इन अ कंट्री लाइक इंडिया, बहुत सारे मिथ है फॉर द सुप्रीम। तो एक तो परमात्मा अर्थात एक है। परमात्मा मतलब व्हेन इट कम, शायद दिस देहधारी परमात्मा है। देर आर मेनी फिगर्स इन द नेम ऑफ गॉड। अच्छा, फिर कोई कहते हैं परमात्मा निराकार है, कोई कहता है परमात्मा अ, ऊपर रहता है, कोई कहता है परमात्मा सब में है, द सुप्रीम। कोई कहता है आत्मा ही परमात्मा है, कोई कहता है आत्मा परमात्मा अलग है, और कहीं कोई कहता है ये डिवाइन जो भी शक्ति है वो परमात्मा है। अब नाउ इनमें से क्या सभी राइट है? सभी राइट है या एक राइट होगा? अच्छे से देख लो, सभी राइट है या एक राइट है? सो हियर वी आर नॉट गोइंग टू इम्पोज एनीथिंग, हियर वी आर नॉट गोइंग टू present any philosophy of Brahma Kumaris, will just go by your approval। क्या ये सभी राइट है या इनमें से कोई एक राइट हो? क्या सभी राइट है? इसमें भी क्वेश्चन मार्क, चूज नहीं कर सकते। अच्छा, ऑल आर राइट। तो हम कहते हैं सब जगह परमात्मा है, कोई कहते नहीं परमात्मा ऊपर है। एक्चुअल क्या है? एक ही जगह है। तो क्या सब राइट हो सकते कि कुछ कुछ राइट है कुछ रॉन्ग है? कुछ राइट है कुछ रॉन्ग है, ऐसे कहेंगे? यस, ओके। सो नाउ क्या राइट है क्या रॉन्ग है? नाउ अब ये जो भी बातें हैं कि यही देवता ही परमात्मा है, परमात्मा मतलब, अब इसमें बताओ जितने भी डिवाइन फिगर्स है, अब ये सब में से भी राइट कौन है? क्योंकि when we talk about the supreme energy, highest, now we should have a very clear, suppose you want to meet the chairman,
any director, they have the powers, but are they the chairman? Just because they have pass, a general manager, he also has pass. Is he the chairman? Can there be 100 chairman? डायरेक्टर्स बहुत हो सकते हैं, जीएम बहुत हो सकते हैं, चेयरमैन एक होगा या 10 होंगे, प्राइम मिनिस्टर एक होगा या 10 होगा, क्योंकि हाईएस्ट पोजीशन है ना, हाईएस्ट पोजीशन में बहुत सारे नहीं हो सकते, एक होगा। तो नाउ जितने भी डिवाइड, जस्ट बिकॉज the direct, all the director operation, director power, director infrastructure, ये सब डायरेक्टर्स है, इन सब में पावर्स दी हुई है। सो कैन दे बी द चेयरमैन? दे हैव द पास, बट दैट डजंट मीन दे आर द चेयरमैन। तो नाउ जितने भी देवी देवताएं हैं, so called, now we'll have to understand, can they be the gods? हम कहते, इसलिए हम क्या कहते, देवी देवताएं प्लूरल में कहते, एंड ईश्वर के लिए कहते गॉड इज वन। दे हैव पास, बट कैन दे बी कॉल्ड एज गॉड? क्वेश्चन मार्क। नाउ जितने भी धर्म स्थापक है, कैन दे बी कॉल्ड एज गॉड? क्योंकि वो धर्म की स्थापना कर रहे, दे हैव सम पास, देयरफॉर दे आर गॉड्स। कैन वी से दिस? महात्माएं हैं, सो कैन दे बी गॉड्स? अब इन तीनों में अगर देखो, इट्स ऑलवेज अ प्लूरल, एंड गॉड के लिए क्या कहा? सिंगुलर। गॉड के लिए प्लूरल नहीं यूज किया, आत्माओं के लिए प्लूरल यूज किया, गॉड के लिए नहीं यूज किया। तो आखिर भी, इफ जस्ट बिकॉज दे हैव सम पास, कैन देयर बी गॉड? और फिर हम कहते गॉड इज वन। फिर हमने क्या कहा कि ये सब है, सब भगवान के रूप है। फाइन, वंडरफुल, परमात्मा के रूप है। मेरा, आई विल सपोज मेरे बहुत सारे नाम है, रूप अनेक, नाम अनेक है वो एक, एग्रीड। मेरे बहुत सारे नाम है, मुझे कोई संगीता बोलता है, कोई बबली बोलता है, कोई टीनू बोलता है, कोई मुन्नी बोलता है, बहुत सारे नाम है। सारे नाम के समय क्या फेस भी मेरा चेंज हो जाता है? कोई बबली बुलाता है तो अलग रूप होता है, कोई टीनू बुलाता है तो अलग रूप होता है, नाम अलग और फेस भी अलग। कैन आई बी द वे सेम संगीता? अपने लॉजिकल से आज हम समझेंगे, बिकॉज वी हैव टू कनेक्ट विद द हाईएस्ट एनर्जी which is called meditation. So I have to be very clear of the highest energy also. So because नाम अनेक, मेरे बहुत सारे नाम, और उसके साथ मेरे पूरा चेहरा भी चेंज हो रहा है। तो बबली को तो एक दूसरा फुल दूसरी बॉडी आती है, टीना को तो दूसरी बॉडी आती है। अब सोचने वाला सोचेगा कौन इसमें से बबली है, मैं जिसको बुला रहा हूं वो कौन है फिर? अच्छा, नाम के साथ रूप भी चेंज हुआ, रूप के साथ काम भी चेंज हुआ, ऑक्यूपेशन भी चेंज हुआ। एक है विनाशकारी, एक है कल्याणकारी। ब्रह्मा है स्थापना के कार्य में, विष्णु जी है पालना के कार्य में, एक एक है असुर को संहार करने वाले। नाम चेंज, रूप चेंज, और ऑक्यूपेशन भी चेंज। कैन इट बी गॉड? कैन ही बी कॉल्ड वन? कुछ तो सिमिलैरिटी हो, जस्ट बिकॉज एस आई सेड मेनी डायरेक्टर्स, they have pass, but because they specialize in particular power, can they be called as the chairman? इसलिए हम क्या कहते हैं, शीतला देवी शीतलता की देवी, संतोषी माता संतुष्टता की देवी, स्पेशलाइजेशन है, बट कैन दे बी कॉल्ड एज द सुप्रीम?
तो रूप अनेक, नाम अनेक, तो फिर नेचुरल है, और काम भी अनेक, अलग अलग, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। इट्स नॉट दे आर रॉन्ग, बट कुछ गड़बड़ है। क्यों, क्या गड़बड़ है? इट्स जस्ट लाइक, जैसे वो बताते हैं ना, इसका एक, वो ब्लाइंड, ये एलिफेंट होता है, तो स्टोरी मालूम है ना? तो वो 7 अंधे होते हैं उस एलिफेंट में, तो उसको सब लोग क्या बोलते हैं? ये सब 7 अंधे हैं। तो कोई उसके वो सुन इसको हाथ लगाता है, ट्रंक को, कहते हैं इट्स लाइक अ स्पीयर, इट्स लाइक अ स्नेक। और कोई उसके कान को हाथ लगाता है, कहते हैं इट्स लाइक अ फैन, दिस इज अ फैन। कोई उसके वो पीठ को, बॉडी को हाथ लगाता है, इट्स लाइक अ वॉल। someone say it's like a tree, it's like a rope. Now, are are they wrong? Are they wrong? Are they wrong? Yes or no? No. But are they right? Are they right? No या yes? वो भी no. They are wonderful. They are describing what they felt. आपके लिए, suppose if I ask your children, how are you? They will have something to say. If I ask your partner, how are you? They will have something to say. अच्छा, क्या आपका, उनका, चिल्ड्रन का और पार्टनर का सेम आंसर हो सकता है? मतलब दे विल हैव समथिंग, दिस इज मदर, दिस इज फादर। उनका अलग व्यू है, उनका अलग व्यू है। अच्छा, इफ आई आस्क योर पेरेंट, दे विल ऑल्सो हैव समथिंग टू से। उनका एग्जैक्टली सेम हो सकता है, अलग अलग होगा ना। अच्छा, हर कोई का व्यू अलग अलग है, हर कोई के लिए। नाउ आर दे रॉन्ग? नो। बट आर दे राइट? दे राइट, दे फील कि मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट है। यू नो, यू आर नॉट स्ट्रिक्ट, यू हैव अ वेरी डीप गुड विशेस। सो आर दे राइट? नो। तो रॉन्ग भी नहीं है, राइट नहीं है। दे आर जस्ट टेलिंग व्हाट दे फेल्ट अबाउट यू। तो सिमिलरली, जितने भी अभी तक हमको, जिन्होंने भी बोला भगवान के बारे में, गॉड के बारे में, हाईएस्ट एनर्जी के बारे में, इट्स नॉट रॉन्ग, बट दे जस्ट सेड व्हाट दे फेल्ट अबाउट, अबाउट द सुप्रीम। नाउ आपके बारे में सबसे एक्यूरेटली कौन बोल सकता है, एस इट इज, जैसे आप हो, कौन बोल सकता है? आप जो हो, जैसे हो, who can say exactly about yourself, about you? हम्म? खुद ही, we ourselves, parents, और myself, और myself। मेरे बारे में मैं कौन, क्या हूं, कैसे हूं, सबसे बेस्ट आंसर किसके पास? myself। वंडरफुल। तो सिमिलरली परमात्मा के बारे में सब कुछ कहा गया, लेकिन मेरे बारे में व्हाट आई एम एक्चुअली डीप इनसाइड, वो मैं खुद ही बता सकती हूँ। इसी तरह अभी तक जितनों ने बताया, दीज वर ऑल स्क्रिप्चर्स, दे जस्ट सेड एज पर व्हाट दे फेल्ट, लेकिन उसके बारे में द बेस्ट आंसर ही हिमसेल्फ गिव्स।
इसलिए ये जो नॉलेज हम आपको बता रहे हैं, इट्स व्हाट हैज बीन एक्चुअली गिवन। तो नाउ अब जितने भी बिलीव्स है, सो व्हाट ही हैज गिवन, वो डायरेक्ट नॉलेज आपको बता रहे हैं। तो अभी तक जितने भी बिलीव्स है परमात्मा के बारे में, उसको हम 3 कैटेगरीज में करते हैं। द वेरी फर्स्ट कैटेगरी, जो जो मानते हैं साकार ही परमात्मा है, मतलब जो फर्स्ट कैटेगरी कि जो बताते हैं 3 कैटेगरी, साकार, निराकार और ये है इसमें। तो फर्स्ट इज साकार एंड निराकार एंड प्रकृति। तो जितनी भी बिलीफ है अबाउट गॉड, इन तीनों में आ जाती है। आइदर सम फिजिकल बीइंग दैट इज दे कॉल्ड एज गॉड, और नेचर इज गॉड, और गॉड हैज नो फॉर्म। तो जितने भी बिलीफ है इस तीनों में आते हैं। अब नाउ विल लिस्ट आउट सम क्वालिफिकेशन कि अगर वो परमात्मा है, मतलब मिनिमम ये बातें तो उसमें होनी चाहिए। जैसे सपोज इफ यू आर अ डॉक्टर, इफ यू आर ग्रेजुएट बीकॉम, ये मिनिमम इतनी बातें तो आप में होनी चाहिए। तो अगर वो परमात्मा है तो उसको मिनिमम ये बातें तो होनी चाहिए। द वेरी फर्स्ट थिंग कि फर्स्ट ही शुड बी बिलीव्ड बाय ऑल रिलीजन्स। परमात्मा अर्थात सर्व धर्म माननीय हो। दूसरा, ही शुड बी बियॉन्ड ऑल डुअलिटीज। परमात्मा अर्थात हम कहते हैं ना, जन्म मरण मान अपमान, ये सब मनुष्य है जो ही गोज अक्रॉस। परमात्मा इन सब से परे होगा। तो वन इज ही शुड बी बियॉन्ड ऑल डुअलिटीज। सेकेंड, थर्ड, ही शुड बी सुप्रीम, हाईएस्ट। उसके ऊपर कोई नहीं हो सकता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई कोर्ट नहीं होता है ना, हाईएस्ट। और फोर्थ, इसलिए पहला था कि सर्व धर्म माननीय। दूसरा, सर्व सर्वोपरि, बियॉन्ड ऑल डुअलिटीज। तीसरा, ही शुड बी सर्वोच्च, हाईएस्ट। एंड फोर्थ है, ही शुड बी सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। वैसे भी हम कहते हैं कि तू नहीं जानता, मैं नहीं जानता, वो जानता है। तो परमात्मा मतलब जिसमें ये चारों क्वालिफिकेशंस है, मतलब मिनिमम ये बातें तो होनी चाहिए। डू वी एग्री? यस और नो? देन ही therefore he is God ना। अदरवाइज ये, if some believe some don't believe, somewhere he is highest, there is someone beyond him also, तो फिर तो वो फिर परमात्मा नहीं हुआ ना। जिसमें भी ये चारों क्वालिफिकेशन है वो परमात्मा है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके फाइन। अब हम फर्स्ट कैटेगरी को लेते हैं, जो मानते हैं, जो कहते कि परमात्मा अर्थात ये सब बातें। जो फर्स्ट कैटेगरी था कि साकार। ना उसके पहले लेट्स सी कि जैसे कहते कि साइंस प्रूव करे, नो एवरीथिंग व्हाट इज बीन प्रूव्ड बाय साइंस दैट वी बिलीव, साइंस शुड प्रूव। Is God a entity or a physical thing which can be subjected to a scientific evaluation? आज कोई रिलेशनशिप को साइंस प्रूव कर सकती है? आज कोई दवाई है जो शांति दे सकती है? एनी मेटाफिजिकल हैज नेवर बीन प्रूव्ड बाय साइंस। साइंस कैन नॉट रीच दैट एस्पेक्ट। नहीं तो हम गोली ले ले, हमारे संबंध बहुत ठीक हो जाए। एनर्जी एनर्जी की फीलिंग्स में साइंस का रीच ही नहीं है। ये तो दुकान में जाओ, पीस की गोली लेके आओ, पीस में मिल जाए।
प्यार की गोली मिलो, प्यार मिलता जाए, नथिंग। मेटाफिजिकल में साइंस नहीं जा सकती। सो गॉड इज नॉट एन एंटिटी टू बी सब्जेक्टेड टू साइंटिफिक एवेल्यूएशन। तो परमात्मा कौन है? तो फर्स्ट जितने भी फिजिकल एंटिटीज है उसमें ये चारों बातें प्रूव होती है। ही इज बीन बिलीव्ड बाय ऑल रिलीजन्स, इट्स ओनली वन पर्टिकुलर रिलीजन, हिंदुइज्म। सेकंड, जो फिजिकल को मानती, बाकी और कोई रिलीजन मानती नहीं। दूसरी बात कि ही शुड बी बियॉन्ड ऑल डुअलिटीज। जहां शरीर है वहां जन्म बताया, जहां जन्म बताया वहां मरण बताया, और जहां जन्म मरण है वहां हानि लाभ निंदा स्तुति सब बताया है। तो कोई भी शरीरधारी दे हैव टू गो अक्रॉस दीज ऑल फीलिंग्स। इसलिए बोला कि रामकृष्ण जैसे ने भी अवतार लिया, उसको भी किसी ने नहीं छोड़ा। और तीसरा, ही शुड बी सुप्रीम, हाईएस्ट। नाउ योर चाइल्ड में एक्सील यू इन ऑल रिस्पेक्ट, ब्यूटी वाइज, टैलेंट वाइज, एजुकेशन वाइज, वर्च्यू वाइज, वो हर तरह से आपसे बाहर हाईएस्ट होगा। लेकिन जहां तक एज कंसर्न्ड है वहां तो वो छोटा होगा। बाकी सब जगह एक्सील कर सकता है, तो कहीं तो वो छोटा होगा। तो एनी बॉडीली बीइंग, ही दे माइट, इट कुड बी फेल्ट कि बहुत पावरफुल है बहुत, लेकिन एज फार एज एज इज कंसर्न्ड, उसके पेरेंट्स दिखाए तो समवन इज बियॉन्ड हिम। एंड व्हाट वी सेड कि सर्वोच्च हो, हाईएस्ट हो। जैसे सुप्रीम कोर्ट के आगे कोई कोर्ट नहीं होती, दैट इज कॉल्ड द हाईएस्ट कोर्ट। परमात्मा अर्थात हाईएस्ट। एंड द लास्ट इज ही शुड बी नोअर ऑफ ऑल। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आई थिंक सो वी हैड इवन मेंशन्ड अर्लियर समटाइम्स, आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस। For the cases are like that कि there is some mild problem with the person. It happened in Berlin, Germany. तो ऑफिस से आया, बात कर रहे थे वाइफ से, अचानक पेट में दर्द हुआ, बहुत हल्का था, तो उसने ध्यान नहीं दिया, फिर इतना सीवियर हो गया, ही फेल्ट अनकॉन्शियस। और उसकी कॉन्शियसनेस वो सिचुएटेड सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द बॉडी, और वो कॉन्शियसनेस सब कुछ देख रही है कैसे इट इज, वो बहुत वाइफ डिस्टर्ब्ड है। द डॉक्टर कम्स, डायग्नाइज करते हैं। अब ये सब, दिस कॉन्शियसनेस इज सिचुएटेड सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द बॉडी, और वो सब देख रही है। और फिर कहते हैं सीरियस केस है, ही हैज टू बी हॉस्पिटलाइज इमीडिएटली। हॉस्पिटल पे ले जा, स्ट्रेचर पे ले जाते हॉस्पिटल में। एंड देर इज अ मैग्नेटिक अट्रैक्शन कि वो इतना एक जैसे सॉर्ट ऑफ 25 जैसे रेडियस के किलो दूरी पर वो स्थित है। एंड नाउ दिस कॉन्शियसनेस इज वॉचिंग एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग विद द बॉडी, कैसे डॉक्टर्स क्या क्या बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और अ, अच्छे से वो समझ पा रहा है, देख पा रहा है। और एट द सेम टाइम उसको बहुत सुपर सेंशियस जॉय फील हो रही है, और बाहर जो उसके फैमिली फ्रेंड्स हैं उनके मनों में क्या बीत रही है वो भी देख रहा है। अब ये सब करके, एंड उसको इतनी एक सुपर सेंशियस जॉय हो रहा है कि उसको वापस आने का दिल नहीं करता है। एंड एस इज द केस, क्लोरोफॉर्म धीरे धीरे उसका इफेक्ट कम होता है, ऑपरेशन खत्म होता है, और फिर वो कॉन्शियसनेस वाज ऐसे फोर्स टू एंटर द बॉडी। द मोमेंट इट एंटर द बॉडी, फिर उसकी विजन लिमिटेड होगी। वो उसी को देख पा रही है जो इस शरीर, इस नेकेड आई से देख सकते। मतलब ब्रेन लिमिट्स द फंक्शन ऑफ द माइंड, मन की शक्ति अथाह है, जहां शरीर में आ गया उसकी लिमिटेशन आ जाती। तो कोई भी देहधारी, सो कॉल्ड बॉडीली एंटिटी, दोज हु आर कॉल्ड एज गॉड्स, उसमें लिमिटेशन होगी। कुछ की जानेगा सब समय, और सब की जानेगा कुछ समय, नॉट सब की सब समय। अच्छा, तो दूसरा फिजिकल बॉडी में लिमिटेशन, और तीसरा है सेकंड इज नेचर। नेचर इज गॉड, और नेचर इज द क्रिएशन ऑफ गॉड। कौन सा अच्छा लगता है? नेचर इज द क्रिएशन ऑफ गॉड, ये तो फ्रॉम द वेरी अदर पॉइंट्स ये डिस्कार्ड होता है कि नेचर इज गॉड। एंड द थर्ड इज गॉड इज इनकॉर्पोरियल, निराकारी परमात्मा है। अब ये सब धर्मों में कैसे माना जाता है?
हिंदुइज्म में इन द फॉर्म ऑफ शिवलिंग, क्रिश्चियनिटी में दे से गॉड इज लाइट, तो लाइट के रूप में, मुस्लिम में मानते हैं कि परमात्मा ज्योति है, इसलिए वो कहते हैं हे परवरदिगार, हे नूरे इलाही, नूर इलाही बोलते हैं, नूर मतलब तेज। हिंदुइज्म में ज्योतिर्लिंगम, ज्योति मतलब लाइट। और इसी तरह पारसी सिख में मानते हैं कि एक ओंकार सतनाम। इफ यू से निराकार को सब धर्मों में माना जाता है। तो नाउ अमंग अस द थ्री कैटेगरीज, कैन वी से परमात्मा निराकार? अब उसके साथ व्हेन आई नो व्हाट इज ही, हाउ इज ही, देयरफॉर इट्स कॉल्ड निराकार। मतलब वैसे आकार नहीं है, लेकिन वो आकार पॉइंट है। पॉइंट का मतलब न जिसका नाम है, मतलब अ, वो पॉइंट रोम्बस भी बना सकते हो, पेंटागन भी बना सकते हो, और पॉइंट पॉइंट का जिसका अपना कोई रूप नहीं। तो परमात्मा इसलिए ज्योति स्वरूप है। नाउ सो मेडिटेशन व्हेन द क्लैरिटी, परमात्मा कौन है क्या है ये क्लैरिटी हो जाती, नाउ इट्स इजी टू कनेक्ट। So next time we'll understand the procedure of connection. Clear हुआ? So therefore God is the point of light. So when I'm clear about this, it is very easy for us to connect. तो अब वो point of light के साथ हम connect करते हैं, एक just 10 seconds के लिए अपने आप को सब बातों से एकदम फ्री करें, और पॉइंट ऑफ लाइट, मैं आत्मा हूं, ज्योतिर्बिंदु और परमात्मा वो भी मेरे जैसा ज्योतिर्बिंदु है। फील करें इस बात को। वेरी पावरफुल लाइट बिफोर मी, a very highest energy. This is the highest energy, the supreme soul. Om Shanti. Thank you, Deep, for the session today, and thank you everyone else for attending. Let us meet the next week for understanding the practice of how should we do this meditation and connect with the Supreme Power. So thank you everyone. Have a nice day. Om Shanti. Om Shanti.